Ram
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी को आज का भागवत कक्षा में स्वागत है। कृपया मेरे पुस्तक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततुजायामुदीरये ततुजायामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भागवतम के तीसरा स्कंद अध्याय 9 और श्लोका संख्या 5। अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा प्रेयर्स फॉर क्रिएटिव एनर्जी। तो उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपके पास है मोबाइल वगैरह है तो आप दे सकते हैं। थॉट 3.9.5। ये तु त्वदीया चरणाम्बुज कोशगन्धम् चरणाम्बुज कोशगन्धम् जिघ्रान्ति कर्ण विव्रैः श्रुतिवातनीतं जिघ्रान्ति कर्ण विव्रैः श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीता चरण प्रयाया च तेषां भक्त्या गृहीता चरण प्रयाय च तेषां न पेशीनाथ हृदयां गृहात् स्वपुंसा न पेशीनाथ हृदयां गृहात् स्वपुंसा। कोई अगर रिपीट करना है किसी के पास है तो कर सकते हैं। 3.9.5। ये तो त्वदीया चरणाम्बुज कोशगन्धम् जिघ्रान्ति कर्णा विव्रैः श्रुतिवातनीतम् भक्त्या गृहीता चरणा प्रयाय च तेषां न पेशीनाथ हृदयां गृहात् स्वपुंसा। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ये मतलब दोज हु तू बट त्वदीय योर चरण अंबुज लोटस फीट कोश इनसाइड गंधम फ्लेवर जिघ्रांति स्मेल कर्ण विवर्णेहि थ्रू द channel of the ears श्रुतिवातनीतम carried by the air of the Vedic sound bhaktya by devotional service grihita charanah accepting the lotus feet paraya transcendental cha also tesha for them na never apaishi separate nath oh my lord hridaya heart ambu ruha from the lotus of स्वपुंसा of your own devotees। तो मेरे पास इंग्लिश भगवद गीता है तो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। तो ट्रांसलेशन पकड़ पाई श्रील प्रभुपाद की जय। ओ माय लॉर्ड, persons who smell the aroma of your lotus feet carried by the air of the Vedic sound through the holes of the ears accept your devotional service. For them you are never separated from the lotus of their hearts. Purport
For the pure devotees, the Lord, there is nothing beyond the lotus feet of the Lord. And the Lord knows that such devotees do not wish anything more than that. The word "tu" specifically establishes this fact. The Lord also does not wish to be separated from the lotus heart of those pure devotees. That is transcendental relationship between the pure devotees and the personality of Godhead. Because the Lord does not wish to separate himself from the hearts of such pure devotees, it is understood that they are specifically dearer than the impersonalities. The relationship of the pure devotees with the Lord develops because of devotional service to the Lord on the authentic basis of Vedic authority. Such pure devotees are not mundane sentimentalists but are actually realists because their activities are supported by the Vedic authorities who have given oral resources to the facts mentioned in the Vedic literature. The word Paratyaya is very significant. Para bhakti or spontaneous love of God is the basis of an intimate relationship with the Lord. This highest stage of relationship with the Lord can be attained simply by hearing about Him, His name, His form, His quality, etc. from authentic sources like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, recited by pure, unalloyed devotees of the Lord. Om Jnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kalamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sarvana Raghunatha Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamsha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwabhanu Sutedevi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Krupa Sindhubhya Evacha Padhanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashakaleshakarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरे कृष्ण। तो मेरा बहुत सौभाग्य है कि सब महान महान वैष्णव सामने बैठ के कुछ भागवतम कथा करने की मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला है। साथ साथ में आप लोग के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करके मैं आपसे आशीर्वाद का याचना करता हूँ ताकि ये अमर पुराण भागवत के बारे में कुछ चर्चा कर सके, ताकि मेरा हृदय का शुद्धिकरण हो सके और साथ साथ में श्रील प्रभुपाद का और भक्तों का भी प्रसन्न हो सके। तो नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ बैठ के कथा करना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा सुन लिया, कॉपी एंड पेस्ट। बट टू स्टे ऑपोजिट साइड एंड हियरिंग फेथफुली सबमिसिवली, वो सबसे बड़ा क्या बोलते हैं और भी महान तब कार्य है। और उससे क्या होता है, एक प्रवचन करते से भी ज़्यादा बेनिफिट किसको मिल सकता है, हियरर को। प्रवचन वाला जो है अगर प्राइड से अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला बैठ के कथा कर रहा है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। बट वही सेम चीज़ एक हियर सबमिसिवली सुनता है और उसको अपने लाइफ में पालन करने का प्रयास करता है, ही गेट्स मोर बेनिफिट। तो इसी के साथ हम आज का ये भागवतम कथा का चर्चा शुरू करते हैं। तो ये अध्याय का शीर्षक है जैसे ब्रह्मास प्रेयर्स फॉर क्रिएटिव एनर्जी। तो थोड़ा हम प्रिल्यूड में जाएंगे। तो ये 25 सेटअप प्रेयर्स है जो ब्रह्मा जी
भगवान को याचना करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना है, तो उसमें हम ये टेक्स्ट को देखेंगे। बट उससे पहले क्यों ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, थोड़ा एक 10-15 मिनट हम थोड़ा पिछले चैप्टर को थोड़ा एक क्विक रिकैप करेंगे, देन विल कम टू दिस चैप्टर। ठीक है, तो अध्याय 8 में मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मा फ्रॉम गर्भदक्षाई विष्णु, कैसे गर्भदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे स्टार्टिंग में अध्याय शुरू होता है, मैत्र मुनि विदुर को बहुत ही प्रेस करते हैं, आप इतने मतलब क्या बोलते हैं, ऑथेंटिक जो गुरु परंपरा से आए हैं, हाँ, तो आप महान भक्त हैं। तो ऐसे प्रार्थना करके फिर बाद में मैत्र मुनि बोलते हैं कि ठीक है, तो मैं ये श्रीमद् भागवतम जो है ये आपको मैं जो भी मैं आपको बताता हूँ करके। ठीक है, तो यहाँ प्रभुपाद परपट में बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये सक्सेशन मतलब सॉल्यूशन टू द ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द मेटेरियल लाइफ, भौतिक जगत का सारा प्रॉब्लम वगैरह जो है भागवतम भगवद गीता इसके माध्यम से क्या होता है, पूर्ण हो सकता है। लेकिन कब, व्हेन यू हियर इन द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, भक्तों के संग में जब सुनते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, भक्तों के माध्यम से सुनते हैं और हम उसको अपने जीवन में उतार के खुद पढ़ने के प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब ये ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो ये जो जीव जो है माया का जो शक्ति जो है उसको जो प्रभाव से ऑलरेडी डूबा हुआ है, तो उससे वो क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है, नहीं तो निकलना बहुत मुश्किल है। तो फिर मैत्र मुनि ये बताते हैं कि कैसे ये भागवतम आया है। हम सुनते हैं भागवतम किससे आया करके, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को पता है, लेकिन और एक परंपरा बताया है। हम सुनते हैं कि भागवतम अनादिकाल से है, तो उसका यहाँ इस चैप्टर में मेंशन किया है कैसे भागवतम और भी पहले और किसी ने और किसी को बताया था, ये पूरा परंपरा सिस्टम बताया। तो सनत कुमार को यही भागवतम संकर्षण भगवान ने पहले ये बताया था। ठीक है, तो फिर वही आगे ये बताया गया कि जो परंपरा जो है, फिर जो सनत कुमार जो है, संकर्षण जो है, ये किसको बताते हैं, सनत कुमार को। ठीक है, तो लॉर्ड संकर्षण दस स्पोक द श्रीमद् भागवतम टू द ग्रेट से सनत कुमार। ठीक है, तो who had already taken the vow and renunciation from सांख्यायन मुनि। ठीक है, सांख्यायन मुनि के बाद सनत कुमार ऐसे करके आता है। ठीक है, फिर बाद में जो सांख्यायन मुनि, ये जो श्रीमद् भागवतम जो है, हाँ, पराशर मुनि उनसे वो सुनते हैं। फिर पराशर मुनि के माध्यम से फिर ये परंपरा जो है लास्टली उस टाइम पर मैत्र मुनि वहाँ रहते हैं, उनसे सुनते हैं, उसके माध्यम से ही आता है। तो मतलब संकर्षण हो गया, संकर्षण से किसको बताते हैं, सनत कुमार को बताते हैं। संकर्षण से सांख्यायन मुनि सुना है। सांख्यायन मुनि के जो कथा में कौन बैठे थे, मैत्र मुनि। तो मैत्र मुनि किसको बताते हैं, ये पराशर मुनि को बताते हैं, सॉरी पराशर मुनि को बताते हैं। और ये विदुर जो है, मैत्र मुनि जो है, विदुर को ये पूरा परंपरा सिस्टम बताते हैं। तो ये परंपरा सिस्टम जो है, ये भागवतम जो है खाली व्यासदेव से शुरू नहीं हुआ है, तो ये इटर्नल है। भगवान इटर्नली सब जगह ये सब चीज़ करते रहते हैं। तो ये एक परंपरा है जो भागवतम का परंपरा हम सुनते हैं, जो संकर्षण जो है सनत कुमार को बताते हैं, एंड लास्टली सांख्यायन मुनि के माध्यम से मैत्र, ठीक है, वो बताते हैं, सनत कुमार को बताते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो ये टाइम इमोरल से ये भागवतम जो है। ठीक है, तो फिर ये बता, तो ये अभी भागवतम का जो मतलब कैसे क्रिएशन हुआ है, ये जो थर्ड कैंटो है ना, सुनते ही नींद आने लगेगा, ऐसा कैंटो है। बट इसमें भी बहुत रोमांचक कथाएं वगैरह बहुत है, जैसे प्रेयर्स, वंडरफुल थिंग्स। हरे कृष्ण सुने हैं। तो बट क्या है, हमको इसलिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कभी भी भागवतम का डायरेक्ट
10th कैंटो में जंप नहीं करना चाहिए। हम धीरे धीरे सनई सनई फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो ऐसे पढ़ेंगे और भगवान का महानता जानने की कोशिश करेंगे, भगवान कितना महान है करके। तब भगवान का रासलीला सुनेंगे, भगवान का लीला सुनेंगे तो सामान्य लोग जैसे बेबिल्डर हो जाते हैं। हाँ, अरे भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उनको कभी बिलीव नहीं होता। क्यों? उनको भगवान का जो ये लीला वगैरह, भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, सृष्टि लीला के बारे में कुछ पता ही नहीं। कैसे भगवान का अपना माया शक्ति से इतना सारा कार्य वगैरह सब कर लेते हैं। भगवान का कितने मतलब भगवान कौन है, उसके अंश के माध्यम से क्रिएशन होता है। ये जब हम जानेंगे भगवान का क्या बोलते हैं स्तर जो है हम जान लेंगे। भगवान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है करेंगे तो तब वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हर चीज़ जो है हमको एक डिवोटी को, एक भक्त को क्या है वो एक्सेप्टेबल रहेगा। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थर्ड कंटेंट सेक्शन ऐसा है, यहाँ प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन सब चीज़ आता है, कैसे सृष्टि वगैरह होता है। तो ऐसे ही थोड़ा यहाँ सृष्टि का शुरू होता है। जैसे अभी भागवतम कथा है, कौन बता रहे, कौन किसको बता रहे? हाँ, बट दूसरा में ये संकर्षण सनत कुमार को बता रहे, तो वो कथा यहाँ चल रहा है, कैसे वो बताया करके। तो यहाँ बताया गया कि जो भगवान जो है सब कुछ क्या है, सृष्टि एक डिस्ट्रक्शन, ये दो टाइप का होता है, एक पार्शियल होता है, एक फुल टाइम होता है। तो पार्शियल होता है ये तीन लोग जो है, सत्य लोग, ठीक है, मतलब जो तीन लोग है, ये तीनों लोग का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। तो तब उस टाइम पे कैसे होता है, अनंत शेष वगैरह जो है वो रहता है। और जैसे एक लकड़ी में क्या रहता है, अग्नि रहता है, हम देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। तो ऐसे ही भगवान क्या है, वो कारणदक्षाई, जो जल के अंदर वो रहते हैं और अपना वो शक्ति से, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो क्रिएट करते हैं, क्या दृष्टिपात करके, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर बाद में क्या होता है, एक लोटस बर्ड होता है, वो लोटस बर्ड से कौन होता है, ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होने के बाद क्या होता है, ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं, पूरा बेबिल्ड हो जाते हैं। क्यों? दैट इज द कंडीशन ऑफ ये बद्ध जीव का भी ऐसे ही कंडीशन है। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, ये हम जानने के प्रयास नहीं करते, हम अंधकारमय के अवस्था में है। तो लाइक दैट ब्रह्मा जी का भी जैसे हुआ है, उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। दैट्स व्हाई ही वाज बेबिल्डेड इन सर्चिंग, सब जगह इधर उधर सब जगह वो पूरा जाने लगे। फिर बाद में वो कंटेम्पलेट करने लगे पूरा, क्योंकि जो बर्ड में, लोटस बर्ड में उनका उत्पत्ति हुआ, बट वो कहाँ से आया, तो उसके अंदर पूरा जाने लगे। फिर ऊपर जाके 2-3 बार कर लिया, कुछ उनको समझ में नहीं आया, फिर वो ध्यान मग्न होके कंटेम्पलेट करने लगे, ठीक है। प्रभुपाद बताते हैं, in spite of entering the stem and going nearer the navel of Vishnu, he could not trace out the root, उनको पता नहीं चला, ठीक है। तो ऐसा है कि हम पर्सनल एंडेवर से, अपना खुद के ये से हम कभी भी भगवान को जान नहीं सकते, ठीक है। दैट इज द मेन चीज़ हम ले सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में क्या हो गया, रिटायर हो गए ब्रह्मा जी, बोला कि अब कुछ कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग भी ऐसे ही, यानी लोग, हाँ, इम्पर्सनलिस्ट, हाँ, अष्टांगी योगी वगैरह सब बहुत प्रयास करके बहुनाम जन्मनाम मानते ज्ञान माम माम प्रपद्यन्ते करके वो बेबिल्डेड हो जाते हैं। फिर अंत में वो रिटायर होके एक जन्म आता है जब वो भगवान के एक शुद्ध भक्त के संग में आके फिर भगवान का भक्ति करते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी भी रिटायर लेते हैं और टेकन शेल्टर ऑफ दी लॉर्ड। फिर 100 साल तपस्या किया। तो ब्रह्मा जी का अवधि आपको पता है, उसमें नहीं जाएंगे। तो उतना उन्होंने क्या किया, तपस्या किया। तो करने के बाद वो क्या हो सकते हैं, हुआ भगवान को उनको दर्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पूरा भगवान का जो सुंदर कैसे ब्रह्मा जी दर्शन किया, वो पूरा ये अराउंड 5 और 6 श्लोकास में इस आगे बताया गया। कैसे बताया गया कि हाँ, कि
coral mountain. The luster of the transcendental body of the Lord mocked the beauty of the coral mountain. एक पर्वत है कोरल से बना हुआ, कितना मतलब सुंदर होगा, तो उसको क्या है मॉकिंग, मॉकिंग मतलब क्या है हिंदी में बोलते हैं उपहास बोलते हैं ना, भगवान का सुंदर के सामने कुछ भी नहीं है, कोरल माउंटेन है, ठीक है। द कोरल माउंटेन इज वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस्ड बाय द इवनिंग स्काई बट द येलो ड्रेस ऑफ द लॉर्ड मॉक्ड इट्स ब्यूटी। भगवान का सुंदर पीत वस्त्र जो पहनते हैं वो उससे उपहास कर रहे हैं। दो There is gold on the summit of the mountain, but the Lord's helmet, bedded with jewels, mocked it. तो ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान के सुंदरता के सामने ये मेटेरियल नेचर जो है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ फिर आगे बता रहे हैं कि also यहाँ तो the devotees are ever satisfied by the, तो फिर ब्रह्मा जी को देख के भगवान क्या करते हैं, स्माइल करते हैं। तो यहाँ बोलते हैं द डिवोटीज आर एवर सेटिस्फाइड बाय द स्माइलिंग फेस ऑफ द लॉर्ड। भगवान का जो स्मितहास्य उससे ही देखते हैं क्या होते हैं, भक्त जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं, ठीक है, कि तो हमेशा भक्त और भगवान के बीच में क्या रहता है, एक कंपटीशन रहता है, ठीक है। क्या है, भगवान भक्त जो है भगवान का सेवा करके भगवान को प्रसन्न करता रहता है, लेकिन भगवान उसको कैसे एक्नॉलेज करते हैं, जस्ट बाय स्माइल। भगवान का एक स्माइल देख के वो भक्त क्या होता है, इतना जो सेवा करके वो थका रहता है, स्माइल देख के वो क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उसका सारा थकान जो है मिट जाता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि खाली मैं आप लोगों को आपका सेवा जो है इतना कुछ किया उससे मैं कुछ नहीं दे सकता है, आई ओनली कैन गिव माई वन स्माइल। वही एक स्माइल के लिए भक्त क्या है, जीवन भर क्या अपना सेवा जो है वो करते रहते हैं। तो ऐसा सुंदर वर्णन हुआ है, क्या है कि भगवान का कैसे अलग अलग चीज़ दिया है, उसमें डिटेल नहीं देगा। लास्ट में बताया गया इवन इफ इज वन इन द मेटेरियल मोड ऑफ द पैशन टू क्रिएटिंग समथिंग इन द वर्ल्ड ही हैज टू टेक शेल्टर ऑफ द सुपीरियर। अभी ब्रह्मा जी का क्रिएट किस लिए हुआ है, भौतिक जगत का सृष्टि करने के, सेकेंडरी क्रिएशन का सृष्टि करने के लिए, लेकिन उनको भी क्या करना पड़ता है, भगवान का शेल्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक्चुअली ये जो है पहला चैप्टर समझ में आया थोड़ा बहुत, यस। तो फिर बाद में अभी ये जो 6 श्लोका जो है 5th श्लोका है, बट फर्स्ट 5 श्लोका ही बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा हम इसके ऊपर ये करेंगे। मैं खाली पढ़ता हूँ और पर इसका जो ट्रांसलेशन पढ़ के मीनिंग बताता हूँ। बताते ब्रह्म उवाच ह्यातस्मि मेध्य सुचिरन्नदेहभाजं न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवध्यं नायत्ततस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुणगतिकराभिर्विमांसि। तो उसके ट्रांसलेशन में से बताते हैं, Lord Brahma said, "Oh my Lord, today after many years of penance, I have come to know about you and how unfortunate the embodied living entity are that they are unable to know your personality. My Lord, you are the only knowable object, because there is nothing supreme beyond you. If there is anything supposedly superior to you, it is not the absolute. You exist in the supreme by exhibiting the creative energy of the matter." बड़ा क्या है, फिलोसॉफिकल है, बट ये 25 प्रेयर्स को पढ़ना चाहिए। एक एक प्रेयर में एक भक्त का कैसे भाव रहता है भगवान के ऊपर, वो बताते हैं। तो ये क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी कि बहुत साल तक का तपस्या करने के बाद मुझे आपका ये रूप जो है आज देखने के लिए मौका मिला, बट उसके बाद क्या बोलते हैं उसके, लेकिन मैं एक भक्त का हृदय में कैसे रहता है, एक शुद्ध भक्त जो है वो दूसरे का कष्ट को नहीं देख सकता, स्पेशली भौतिकवादी व्यक्ति, मेटेरियलिस्ट लोग वगैरह जो है, इतना सुंदर भक्ति का मार्ग होने के पर भी वो क्या करते रहते हैं, भौतिक कार्य में लगे रहते हैं, दे हैव नो इंटरेस्ट फॉर द स्पिरिचुअल थिंग। तो इसलिए भगवान ब्रह्मा जी भगवान का इतना सुंदर रूप देखने के बाद बोल रहे कि ओ हाउ अनफॉर्चुनेट द एम्बॉडीड लिविंग एंटिटी, से जीव कितना अनफॉर्चुनेट है,
ये कर रहे हो, करुणा भाव से बोल रहे कि यू आर द ओनली नोबल ऑब्जेक्ट, खाली आप जानने योग्य है, फिर भी ये क्या कर रहे हैं, ये आपसे ऊपर बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जीव जो है एक्सटर्नल एनर्जी, आपका ही शक्ति जो है बाह्य माया शक्ति से प्रभावित होकर वो क्या कर रहे हैं, अपने कार्य वगैरह कर रहे हैं, आपको भी जानने के लिए प्रयास कर ही नहीं रहे। तो ऐसा करके पहला प्रेयर है। सेकंड प्रेयर में बोलते हैं रूपम यदेतत् अबुद्ध रशयेन शाश्वन् निवृत तस्मा सत् अनुग्रहाय आदगृहीतम् अवतार साधिका सतैक बीजम यन्नाभिपद्म भवना अहम अविराक्षम। ठीक है, तो यहाँ पर्सनल फॉर्म के बारे में पहले बताया, मैं आपका पर्सनल फॉर्म जो है वो भगवान को दर्शन हुआ, ब्रह्मा जी को दर्शन हुआ, तो उसको और थोड़ा कंफर्म करने के लिए इसके बारे में बोल रहे, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता है आगे जाके पहले भी थे, अभी भी और कलयुग में होते होते 99% कौन है, तो मायावादी मिलेंगे। तो इसलिए भगवान का रूप कितना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको ये करने के लिए इस श्लोक का बताते क्या बोल रहे हैं इसमें, द फॉर्म व्हिच आई सी इज इटर्नली फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटामिनेशन एंड हैज एडवेंटेड टू शो मर्सी टू devotees as manifestation of internal potency. This incarnation is the origin of many other incarnation, and I am born from the lotus flower grown from your navel home. ठीक है, तो ब्रह्मा जी बोल रहे जो ये देख रहा हूँ, ये जो फॉर्म जो है क्या है, इटर्नल फॉर्म है, ये ऐसा नहीं कि भगवान क्रिएट किया, और भगवान का बहुत सारा अनंत क्या है रूप है। ठीक है, तो ये ऐसा आपका जो एक्चुअली ये जो डिस्क्रिप्शन है भगवान का कौन सा रूप है, गर्भोदक्षाई विष्णु। ठीक है, गर्भोदक्षाई के विष्णु अभी जो हमने पहले चैप्टर में जो देखा, भगवान का जो सुंदर रूप के बारे में जो देखा, फिर अभी जो वर्णन जो कर रहे हैं गर्भोदक्षाई के बारे में कर रहे हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु का सुंदरता इतना है, तो भगवान का सुंदरता और कितना कितना गुण होगा। तो ये जो पर्सनल फॉर्म के बारे में और स्ट्रेस करके ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि कैसा हम, तो मैं आपका ये जो लोटस बर्ड से उत्पन्न हुआ हूँ। ये थर्ड श्लोक में बोल रहे हैं, नातः परम परम यद्वत् स्वरूपः मानन्दमात्रमपि कल्पमपि द्विवर्चः पश्यामि विश्व सृजमेकं विश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकदस्त उपाश्रितोस्ते। तो यहाँ बोल रहे हैं, ओ माय लॉर्ड, I do not see a form superior to your present form of eternal bliss and knowledge. भगवान का ये फॉर्म कैसा है, बहुत ही ब्लिसफुल है एंड नॉलेज। जैसे बोलते हैं कि भगवान का क्या है, सच्चिदानंद रूप है। ठीक है, सच्चिद आनंद से भरा हुआ रूप है उनका, जो हमारा भौतिक शरीर जैसे उनका जो रूप जो नहीं है। In your impersonal Brahman effulgence in the spiritual sky, there is no occasional change. ब्रह्मांड में कोई चेंज नहीं है, ऐसे ही है। ठीक है, and no deterioration of the internal potency. I surrender unto you because whereas I am proud of my mental body and senses, your lordship is the cause of the cosmic manifestation, and yet you are untouched by matter. तो मतलब और impersonal चीज कैसे नहीं है वो बता रहे। तो एक भक्त जो है वो ब्राह्मण को भी कैसे देखता है, भगवान का ही स्वरूप देखता है। कैसे, एग्जाम्पल जैसे ट्रेन जब अंधेरे में जैसे लाइट आता है, हम क्या देखते हैं, पहले लाइट देखते हैं, हेडलाइट, जो ट्रेन का लाइट, इंजन के ऊपर जो लाइट रहता है। तो एक व्यक्ति जिसको नहीं पता है वो क्या सोचेगा, जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रहा है तो लाइट आ रहा है करके सोचेगा। बट जो व्यक्ति ज्ञानी है, जिसको पता है अरे ये तो ट्रेन के आगे इंजन है, इंजन के सामने लाइट है, ठीक है, ये ट्रेन है जो ये है। तो एक भक्त भी वो ब्राह्मण स्वरूप को भी देख के वो क्या देखता है, वो भगवान को देखता है, भगवान के स्वरूप को वो मानता है। दैट इज द हाईएस्ट थिंग। ठीक है, लेकिन एक मायावादी जो है वो एक अज्ञानी का स्वरूप है, जो खाली वो क्या सोचता है, लाइट मेरे तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो उतना उसका ज्ञान जो है वहीं तक ही सीमित है। ठीक है,
तो वैष्णव का अंडरस्टैंडिंग ऐसा है, ब्रह्मन और भगवान, ब्रह्मन को भी देखता है तो वो ब्रह्मन का भी भगवान का तेज है, ठीक है, उसके हिसाब से वो देखता है, ठीक है। तो टेक्स्ट 4, तद्वा इदं सुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्मतो दर्शिनः तत् उपासकानां तस्मै नमो भगवते तुभ्यं यन्नादतो नरकाभागिनी तीरसप प्रसंगे। यहाँ बताया this present form or any transcendent form expanded by the supreme person of Godhead Sri Krishna is equally auspicious for all universe, since you have manifested this eternal personal form upon whom your devotees meditate. I therefore offer my respectful obeisance unto you. Thus, those who are destined to be dispatched to the path of hell neglect your personal form because of speculating on material topics. ठीक है, तो यहाँ दो चीज इंपॉर्टेंट है, क्या है, ऑस्पिशियसनेस, भगवान का जो दर्शन जो है वो क्या है, मंगलमय है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ बता रहा है भुवन मंगल मंगलाय, भगवान के लिए ऐसा है, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, भगवान को ही कर रहे हैं और उनके शुद्ध भक्त को भी मेडिटेट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त क्या करते हैं, भगवान का मैसेज को क्या करते हैं, वो कैरी करते हैं। तो दिस टू थिंग्स आर बहुत इंपॉर्टेंट है। बट दूसरे तरफ से क्या करते हैं, जो आसुरी लोग है वो क्या है, भगवान का ये जो पर्सनल फॉर्म है ये सब चीज़ को वो मानते नहीं। तो ये हमारा प्रील्यूड खत्म हो गया, अभी आज का भागवत क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आज का श्लोक है, तो इसका ट्रांसलेशन ऐसा है, ओ माई लॉर्ड, पर्सन्स हु स्मेल द अरोमा ऑफ योर लोटस फीट carried by the air of Vedic sound to the holes of the ears, accept your devotional service. For them, you are never separated from the lotus of their hearts. तो आप ये जो भागवतम का जो लॉजिक या जो एक दूसरे को रिलेट करके देखोगे ना, आप पागल हो जाओगे। एक साइंटिस्ट वगैरह भी कोई एक चीज़ को ऐसे रिलेट नहीं करता है, जैसे भागवतम में इतना सारा आपको सरल माध्यम से आपको समझाने के लिए बताया गया है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए। पर्सन्स हु स्मेल द अरोमा ऑफ योर लोटस फीट, आपके जो चरण में क्या है, अरोमा है, सुगंध जो है, जिसको वो क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, तो क्या होता है, कैरीड बाय द एयर ऑफ वैदिक साउंड, क्या रिलेशन दिया है, ठीक है, वैदिक साउंड, मतलब कैसे सुन ये कर सकते हैं, वो जो भगवान का जो स्मेल को सूंघ सकते हैं, वैदिक का जो ये से साउंड से, उसके माध्यम से सूंघ सकते हैं, ठीक है। सीधा लॉजिक, थ्रू द होल्स ऑफ द ईयर्स एक्सेप्ट योर डिवोशन सर्विस, वो लोग क्या करते हो, जो व्यक्ति भक्ति का पथ को ले लेते हैं, हाँ, भगवान का चीज़ को श्रवण करते हैं, हाँ, और आपके जो चरण का जो अरोमा, जो सुगंध जो है वो ये कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है, फ्रॉम देम यू आर नेवर सेपरेटेड फ्रॉम द लोटस ऑफ द हार्ट, ऐसे व्यक्ति को क्या है, भगवान कभी छोड़ते नहीं है। तो शुद्ध भक्त को भगवान कभी भी छोड़ते नहीं। तो पर्पट में क्या बोलते देखो, फॉर द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड देयर इज नथिंग बियॉन्ड द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, एंड द लॉर्ड नोस दैट सच डिवोटीज डू नॉट विश एनीथिंग मोर देन दैट। एक शुद्ध भक्त के लिए क्या है, भगवान का ही सेवा, भगवान का ही जो दर्शन, भक्ति ही सब कुछ है, और कुछ भी नहीं चाहिए। दे डोंट वांट एनीथिंग, ठीक है, ऐश्वर्य, बाकी क्या बोलते हैं, प्रेस्टीज, मान सम्मान, कुछ भी नहीं चाहिए, खाली नित्य भगवान का सेवा वही चाहिए। और ऐसे क्या है, द वर्ड टू स्पेसिफिकली एस्टेब्लिश दिस फैक्ट, फिर क्या बोलते हैं, द लॉर्ड ऑल्सो डज नॉट विश टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द लोटस हार्ट ऑफ दिस प्योर डिवोटीज। ऐसे भक्त का क्या करते हैं, भगवान भी उनको कभी छोड़ते नहीं है, भक्त भी भगवान का नहीं छोड़ता है और भगवान भी भक्त को नहीं छोड़ता है।
भक्त क्या करता है? भगवान के चरण को जोर से पकड़ते रहते हैं। भगवान क्या करते हैं? भक्त का हृदय में छोड़ते नहीं, हृदय में ही हमेशा रहते हैं। कंपटीशन रहता है, भगवान भी कभी छोड़ते नहीं है और भक्त भी कभी भगवान का चरण छोड़ते नहीं है। दैट इज द ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप बिटवीन द प्योर डिवोटीज एंड द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ऐसे रिलेशन है दोनों के बीच में। बिकॉज द लॉर्ड डज नॉट विश टू सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम द हार्ट्स ऑफ सच प्योर डिवोटी, इट इज अंडरस्टूड दैट दे आर स्पेसिफिकली डियर देन द इम्पर्सनलिस्ट। जैसे हमने बताया कि जो भगवान का स्वरूप को नहीं मानते हैं, तो क्योंकि शुद्ध भक्त जो है भगवान का स्वरूप को मानते हैं, तो इसलिए वो क्या है? भगवान को बहुत ही डियर है। कौन? भगवान के शुद्ध भक्त। ठीक है। द रिलेशनशिप ऑफ द प्योर डिवोटीज विद द लॉर्ड डेवलप्स बिकॉज ऑफ द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड ऑन ऑथेंटिक बेसिस ऑन वैदिक अथॉरिटी। तो भगवान के साथ भक्त का रिलेशन कैसे होता है? भक्ति के माध्यम से। भक्ति नहीं है कोई भी चीज़ में तो कोई रिलेशन नहीं। यू हैव टू एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप। संबंध भगवान के साथ हम क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम जैसे नवविधा अंग दिया है, श्रवणम कीर्तनम, ठीक है। तो पाद श्रवण जो 9 अंग है, वो 9 अंग को कोई एक अंग या 9 के 9 अंग के माध्यम से हम भगवान के साथ क्या है? भक्ति वाला ये में अपना रिलेशनशिप कर सकते हैं। वही ठीक है हमको क्या करेगा? एक रिलेशनशिप भगवान के माध्यम ये क्रिएट कर सकते हैं। सब प्योर डिवोटीज आर नॉट मंडेन सेंटिमेंटलिस्ट। बाकी लोग जैसे बोलते हैं कि ये लोग तो सेंटिमेंटलिस्ट है, ठीक है, हम जो करते हैं सब चीज़ जो है। चैतन्य महाप्रभु को भी सेंटिमेंटलिस्ट बोला। कौन बोला है? प्रकाशानंद सरस्वती। इन पर जब वो वाराणसी गए थे, ठीक है, बोले ये देखो कोई आके उनको एक ब्राह्मण के पास आके बताए, तो बोले वो तो सेंटिमेंटलिस्ट है, ऐसे ही घूम रहे, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं। अरे सन्यासी है, सब चीज़ें, उनको भागवतम वेदांत का पठन करना चाहिए, हाँ, उसके ऊपर मनन करना चाहिए। ये तो भावुकों के साथ रह के सब जगह भगवान का नाम लेके ऐसे वो कर रहा है और दूसरों को भी भावुक बना रहे हैं। तो उनको कैसे भगवान ने चेंज किया? तो ब्राह्मण का बात सुन के वो प्रकाशानंद सरस्वती और उनके सबको पास वहाँ गए और जहाँ पाद प्रक्षालन होता है वही धोके उधर ही बैठ गए। तो ऐसे वो नम्रता देख के फिर भगवान ने अपने क्या किया? जो व्यक्ति को जो चीज़ चाहिए उनको ऐसे प्रदान किया। क्या किया? तुरंत भगवान ने अपना तेज प्रकट किया। ठीक है, इम्पर्सनिस्ट को क्या चाहिए? तेज चाहिए। तो भगवान देख रहे हैं उनको, तेज दिख रहा है उनको, तो ये वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, सब उनके पास आए। आप यहाँ क्यों बैठे? ये जगह तो कितना, यहाँ तो सब पद प्रक्षालन कर रहे हैं, आप आइए। फिर उनको पकड़ के लेके गए। तो वैष्णव सेवा किया, भगवान का सेवा किया, साथ साथ उनको लेके गए, तो उनको कृपा दे दिया भगवान ने। भगवान वैसे उनको कृपा देने के लिए ही बनारस गए थे। जाते टाइम पे कुछ नहीं किया, लेकिन वापस आते टाइम पे उनको पता था कि ये जगह पर सब मायावादी लोग बैठा है। भगवान का चैतन्य महाप्रभु का अवतार ही इसलिए हुआ है। सब जगह चाहे वो कैसे भी हो, चंडाल हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबको कृपा देना है करके। तो ऐसे लोगों को भी कृपा देना है ना, तो तभी भगवान के ऊपर उनका जो ये पड़ेगा। तो फिर बाद में उनको बताते हैं मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे गुरु ने मेरे को बताया। वास्तव में उन्होंने गुरु नहीं बताया, बट मेरे को बोला है कि मैं वेदांत ये सब फिलोसफी नहीं समझ सकता, हाँ, तो इसलिए बोला कि आप खाली भगवान का नाम लो। ठीक है, तो गुरु मुझे ऐसा नाम दिया कि जब मैं जपता हूँ मैं पागल हो जाता हूँ और मुझे मैं और कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं नाम जप कर रहा हूँ करके। फिर बाद में उनको सब फिलोसफी बताए, वो फिलोसफी सुन के सब भगवान से ही मुक्त हो गए। क्यों? भगवान से ही तो ब्राह्मण आया और इम्पर्सन से, तो सब व्यक्ति क्या है फिर बाद में भक्त बन गए। ठीक है, तो ऐसा है। तो सेंटिमेंटलिस्ट जो करके बोला है, बट आर एक्चुअली रियलिस्ट बिकॉज देयर एक्टिविटीज आर सपोर्टेड बाय द वैदिक ऑथोरिटीज हु हैव गिवन oral reception to the facts mentioned in the Vedic literature। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको भगवान के साथ क्या करना पड़ेगा? एक संबंध करना पड़ेगा। भगवान हमको कभी भी छोड़ेंगे, हम भगवान के चरण को पकड़ेंगे तो भगवान क्या करेंगे? हमारे हृदय में हमेशा रहेंगे। लेकिन अभी का सिचुएशन क्या है? हम भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, स्मरण कर ही नहीं पाते, पूरा उल्टा है। गोपी
गोपी लोग क्या करते थे, भगवान को भुलाना चाहते हैं, लेकिन हर चीज में वो भगवान को दिखते हैं। भगवान को भुलाना चाहते हैं, वृक्ष देख रहे, वृक्ष में भगवान दिख रहे, फल देख रहे, फल में दिख रहे, फूल दिख रहे, बम्बल भी दिख रहे, उसमें दिख रहे, हर चीज में सब जगह उनको कृष्ण ही कृष्ण दिख रहे, कृष्णमय। हम सब चीज देख रहे, हमको सब चीज में क्या दिख रहा है, माया ही माया दिख रहा है, हम भगवान को कहीं देख नहीं रहे। तो दैट इज द डिफरेंस। तो वो स्थिति से हमको इस स्थिति में आना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे जब करेंगे तो हम इससे बाहर आ सकते हैं, ठीक है। ये श्लोका का ऐसे, और इस कंटिन्यूस में बहुत सारा अराउंड ये कितना है, 5th बताया, 20 श्लोका ऐसा है। ब्रह्मा जी भगवान की गुणगान वगैरह करते हैं, सुंदर सुंदर एक एक चीज़ इसमें बताया गया है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि कार्तिक का बहुत ही सुंदर वातावरण चल रहा है सबसे। बाकी कुछ भी फेस्टिवल आता है वो एक दिन के लिए रहता है, लेकिन कार्तिक का जो वक्त जो है, कार्तिक महीना जो है वो 1 महीना फेस्टिवल है। 1 डे फेस्टिवल, जन्माष्टमी या गौर पूर्णिमा 1 डे है ना, बाकी नित्यानंतर जैसे आ गया, रामनवमी आ गया, कुछ भी हो गया 1 डे। बट कार्तिक मंथ जो है वो, इसलिए इसको बम्पर से बोलता है, एक महीना दे दिया, मतलब हर दिन फेस्टिवल है आपके लिए। भक्तों के संग रहो, भागवतम कथा का श्रवण करो, भागवतम पठन करो, सुंदर सुंदर जो प्रार्थना है भागवतम में जो बताए, जैसे ये ब्रह्मा जी प्रेयर से, ऐसे गजेंद्र मोक्षम प्रेयर से, कुंती महारानी प्रेयर से इसका पठन करो और पूरा मग्न रहो। और तो मैं आपके हृदय से कभी जाऊंगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे हम भगवान के चरण पकड़ सकते हैं थ्रू दी एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज। डिवोटी के एसोसिएशन बिना भगवान के चरण पकड़ के छोड़ देंगे। तो व्हेन वी आर देयर विद द डिवोटीज, वी आर ऑलवेज विद द लॉर्ड, भगवान के संग है। तो इसलिए प्रार्थना कीजिए इस महीना जितना भी समय मिलेगा भक्तों के संग रहे, भक्तों के संग दीपदान करें, कथा का श्रवण करें, सारे के सारे हर दिन में दीपदान करें भगवान का, ठीक है। और एक दिन भी भागवतम मिस ना करें, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, हरिनाम थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे